Hello, Gen Z people. So, this is the French Revolution Unit 3. As we have already completed the French Revolution Unit 1 and Unit 2, and many of you have already seen it. And those who have not seen it, please do watch it, and then only you'll understand what is Unit 3 and why is it like this. Also, as promised, I have provided the notes, the one single page notes of each and every unit, and that notes will actually develop your skills to enhance and concentrate your knowledge into precise content. Okay, so that's what I have tried to do. So do open the link of the notes in the description box and just download the PDF, and let's begin with unit 3. So unit 3, France abolishes monarchy and becomes a republic. Okay, so France abolishes monarchy and becomes a republic. The King Louis XVI. Here comes the king again, the Louis XVI. Okay, we know Louis XVI ना, King of Prussia के साथ बहुत ज़्यादा मिलके नेगोशिएशन बना रहे थे. नेगोशिएशंस क्या थे? They were secret negotiations. ठीक है, अब उन लोगों को पता लग चुका था कि now the citizens have developed some kind of common sense, and now they have got it, like seriously they know what agenda we have and what are we trying to do. So many reasons and so many years of unfair treatment, inequality, everything was just everything was so much that it was now beyond their limitations, now beyond their what do we say, that acceptance. They would not accept it anymore. ठीक है, it was beyond their tolerance also. So अब स्टार्ट होता है किंग के नेगोशिएशंस के बारे में. सो लुई 16 जो थे, उन्होंने प्रूशिया के किंग के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करा. ठीक है, नेगोशिएशन स्टार्ट करा. दैट वाज वेरी सीक्रेटिव. ओके, बिकॉज वो उसे इसलिए नहीं बता रहे थे वे सिटीजन्स को, क्योंकि इफ सिटीजन्स वुड हैव नोन कि भाई नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो फिर सिटीजन्स अलग रिवोल्ट मारते. ठीक है, जो उन्होंने किया. जैसे ही उन लोगों को पता चला, वैसे ही जैसे नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई थी, सब कुछ हुआ, और फिर लुई 16 जब इसे पता चला कि भाई अब तो मेरी मोनार्की छिन चुकी है, काइंड ऑफ मुझे इन लोगों को आंसर देना पड़ेगा, तो मैं ऐसे कैसे सर्वाइव करूँगा. तो उसने सोचा कि मैं दूसरे कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करके कुछ करके इन लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ. अब क्या हुआ, उसकी कोशिश तो कामयाब हुई नहीं, बट इसके पहले कि लुई 16 कोई नेगोशिएशन बना के कुछ करते, तो वो सब जो लोग थे सिटीजन्स, they started a war against Prussia and Austria. So Austria was actually वो ससुराल. ठीक है, because Marie Antoinette was the Austrian princess ना. So it was his in-laws house, so kind of both it was very obvious that yes, they would get kind of support from both the countries, because Prussia, he was initiating the negotiations, and Austria, of course, it was his in-laws house, so they were definitely getting the political support from there. So अब इससे पहले कि लुई 16 ने करा, बाकी सिटीजन्स ने वॉर कर दिया. ठीक है, अब वॉर हुआ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. ये वोटिंग हुई अप्रैल 1792 में, और 1792 में तुम्हारा वॉर हो गया. अब लोग क्या थे, एक वॉर छिड़ चुका था लोगों के बीच में, आर्मी के बीच में, राजा के बीच में. सो द एक्चुअल वॉर वाज बिटवीन द किंग वर्सेस द एरिस्टोक्रेट्स. ठीक है, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे और किंग थे, वो सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया. अब बहुत सारे अब तुम कुछ कर रहे हो, दैट वाज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, और उस चीज़ को करने के लिए हमें थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है. इवन इफ यू वांट टू स्टडी, वी नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन. सो मे बी गेनिंग मोटिवेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सम एक्चुअली लिसन टू फुल वॉल्यूम म्यूजिक, सम एकदम मोटिवेटेड सॉन्ग, few watches movie, and many other things. I talk to myself. That is also a kind of motivation. Then you realize that what you want to do and what you are doing. So I think that's the best realization which I have ever got in my life. So yeah, now
thousand patriotic songs were innovated, written by different kinds of different kinds of people. They were high class people, wealthier class, middle class. Everyone were writing patriotic songs. The educated ones, the knowledgeable ones, the artists. Everyone wrote their songs. Now, among those thousand patriotic songs, Marshals. ठीक है, Marshalls, it was the most popular patriotic song, and it was written by Roger de Lille. Roger de Lille is your French word, ठीक है? So it is. Don't you dare pronounce it Roger de Lille or something like that. Okay, it is Roger de Lille. ये एक French pronunciation, and we should pronounce it like that. We have time for everything, so we should at least take out some time and just Google it, the pronunciation, and we should pronounce each and every word correctly. Do not pronounce many words, but whatever you pronounce it correctly. So Roger de L, it was the national anthem in France. Now, national anthem in France, it is still the national anthem in France, because out of every patriotic songs, the Marseillaise was taken as the best one. And why was it named as Marseillaise? ठीक है, इसका भी तो कोई रीजन होगा कि भाई नाम मार्शल्स क्यों पड़ा? Because the volunteers who sung this song was the volunteers of the Marseillaise. ठीक है, इसीलिए इसका नाम मार्शलेज पड़ा. ठीक है, सॉरी आई वाज प्रोनाउंसिंग मार्शल्स ना. मार्शल्स के लोग जो आए थे तो वो मार्शलीज गाना गाए थे. ठीक है, तो द सॉन्ग वाज मार्शलीज. नाउ इन द वॉर, अब वी हैव नोन कि भाई वो वॉर छिड़ चुका है. अब वॉर में वॉर वाज बिटवीन whom? Between the aristocrats and between the king. So in the war they loses the destiny of war. Every war, like currently we are seeing Hamas and Palestine war, every Israel. So everything is just destruction, right? Nothing is benefiting anything. Palestine is like that only, Israel is like that only, Hamas is also doing whatever it want to do. So no one is getting any kind of benefit from that. It is only causing deaths. We have already, I daily read some kind of news relating to that, that has caused thousands of deaths. Okay, 18,000 according to the आज क्या बोलते हैं उसको, सेंसस, और 50,000 से ज्यादा ही होगा वो. ठीक है, तो वॉर हो गया. अब क्या थे कि लोग जो थे, मेन जो थे, हर फैमिली के मेन, वो क्या करने लगे, वो वॉर लड़ने चले गए. ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि आई विल फाइट. Okay, fight for the nation. So they were busy in war, and while they were busy in the war, the women of our nation, the women of the French, so they took all the responsibilities, the task of earning a living for their children, for their family, and they were running the household in every particular house in France at that particular time. Now the constitution of 1791, after the war was done, 1791 में constitution हुआ. war हुआ क्यों था? इसका रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन गया था 1791 में, इट गिव पॉलिटिकल राइट्स टू द रिचर पीपल. वी हैव लर्न ना कि वो वोटिंग का राइट किसको मिला था, 21 इयर्स के अबव, और वो जो 3 गुना टैक्स पे कर सके डेली वेज के. और विमेन और आर्टिसन ये सबको तो छोड़ ही दिया था, गरीब लोग वोट नहीं करेंगे. वाओ, तो ये था. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि पॉलिटिकल राइट्स वाज ओनली गिवन टू द रिचर पीपल, एंड that's why it was considered as a war. ठीक है, अब क्या हुआ, वॉर तो हो गया. अब वॉर डिस्कस करने के लिए बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सब कुछ थे. तो किंग देख ना ले या फिर कुछ वैसा रिवोल्ट ना हो जाए, इसीलिए दे मेड मेनी क्लब्स. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्लब्स बने, एंड मेनी पॉलिटिकल क्लब्स वाज फॉर्म्ड, बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब्स अमंग देम वाज जैकोबिन. जैकोबिन क्लब जो था, दैट वाज टेकन, द नेम जैकोबिन वाज टेकन फ्रॉम द वर्ड कॉन्वेंट. ठीक है, कॉन्वेंट, सेंट जेकॉब था, एक कॉन्वेंट था सेंट जेकॉब, वही चर्च टाइप का था. ठीक है, सेंट जेकॉब पेरिस में था, वहां से इन्होंने वर्ड लिया जैकोबिन्स. अब जैकोबिन क्लब जो था, जैकोबिन क्लब में
very less prosperous section was there, ऐसा भी नहीं था कि all the healthier people or wealthier people, sorry, richer and wealthier people was included in the Jacobin club. No, the less prosperous section, ठीक है, गरीब थे, सब कुछ थे. तो I think the counting of the less prosperous section was more. उन लोगों के अंदर जितना एजिटेशन बढ़ा था, जितना एंगर बढ़ा था, उतना आई डोंट थिंक कि वेल्दियर लोगों के पास बढ़ा था, बिकॉज दे वर द वंस हु वर द मोस्ट अफेक्टेड, because they were not even getting the subsistence food they wanted. We have seen in the last unit subsistence crisis. That's what we are talking about. ठीक है, तो इसके लीडर थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर. Now he was the leader of the Jacobins and इन्होंने लीड किया जैकोबिन्स को. इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैकोबिन्स को बहुत कुछ बताया. ठीक है, जैकोबिन्स को जो लीड करा इन्होंने खुद ही एग्जीक्यूट हो गया. नाउ लेट्स सी क्या कर रहे थे ये. ठीक है, so no doubt he was a very great leader. In Jacobins, he advised everyone to wear long striped trousers. Okay, that was dock workers used to wear those long striped trousers. So Jacobins also wore long striped trousers. अब क्या था कि knee breeches. Now the noble section and the fashionable section used to wear knee breeches. ठीक है, अब उन लोगों ने knee breeches ना पहन के long striped trousers इसलिए पहना क्योंकि they wanted to show that you and your power has now declined. It's we and us to take the power now. Okay, so जैकोबिन क्या पहनते थे? लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनते थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि अब हमारा राज चलेगा, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे. ठीक है, सो सैंट क्लूटोस, जैकोबिन सैंट क्लूटोस भी पहनते थे. उन लोगों को सैंट क्लूटोस बोलते थे, सॉरी, जैकोबिन्स को सैंट क्लूटोस कहते थे. क्यों? सैंट क्लूटोस क्या होते थे? द वन हु वियर्स नी ब्रीचेस. ठीक है, तो उसको सैंट क्लूटोस बोलते थे. नाउ अब जो मेन थे वो रेड कैप भी पहनते थे. रेड कैप क्या पहनते थे? रेड कैप वाज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी का क्या सिंबल था? कि नाउ वी आर फ्री. ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब जो कर अब एंड स्पेशली विमेन को नहीं अलाउ था रेड कैप पहनना, क्योंकि अगर विमेन को अलाउ रहेगा तो फिर सारा विमेन रिवॉल्यूशन ही खत्म हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट है विमेन रिवॉल्यूशन. Now, just give me 1 second. I'm just looking for Santa Claus. What is this? Jacobin decided to start wearing long trousers. Okay, I'm just reading this one out. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wear knee breeches. It was proclaiming the Jacobins came to be known literally those who. Okay, without this, I just got this wrong. Without the knee breeches was known as Saint Clotos. ठीक है, तो without knee breeches were known as Saint Clotos. Now I'll just make the correction in the notes. Okay, फिर जो men थे वो रेड कैप भी पहनते थे. रेड कैप पहनते थे एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी. विमेन को अलाउ नहीं था रेड कैप पहनने का. Women were very much tortured. Even though they were looking after everything, they were very much tortured. ठीक है, तो उन लोगों का भी अलग रेवोल्यूशन चला. Now 1792 में क्या था? Jacobins founded insurrections and large number of parishes found कि ब्रेड का शॉर्टेज है. ठीक है, अब बहुत ज्यादा ब्रेड का शॉर्टेज जब हो गया तब इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया. इतना गुस्सा आया कि फिर से ये लोग अगस्त 10 में पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में जाके घुस के सबको मारने लगे. ठीक है, गार्ड्स को मार दिया, किंग को हॉस्टेज बना लिया. पूरे असेंबली ने डिसाइड किया क्या करे, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे किंग के फैमिली को इम्प्रिजन कर ले. फिर इलेक्शंस करवाए और 21 years के अबव regardless of any kind of wealth they have, वो लोग वोट कर सकते हैं. सो एट लास्ट August 10 they achieved something. तो कभी स्टाइल में घुस रहे, कभी पैलेस ऑफ
ट्यूलरीज में घुस रहे हैं तो वो घुस ही रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं रेड कर रहे हैं, मार रहे हैं, सो बहुत मारा मारी हुई और फिर फाइनली उन लोगों को वोट करने की राइट मिल गई, ठीक है। न्यू इलेक्टेड असेंबली हुई, उसको कन्वेक्शन बोलते थे हम लोग ना। 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ कि abolished monarchy was abolished and France was declared republic, ठीक है। since they have got the voting rights they declared कि भाई अब तो ये रिपब्लिक है and we have now republic form of government, people will elect the government and the head of the government, now no monarchy was there. Earlier Bastille वाले movement के बाद क्या हुआ था कि they were giving liberty to the monarchy but they were not declaring it as republic. अब क्या हुआ August 10 1792 में कि वो रिपब्लिक हो गया कि भाई अब रिपब्लिक है ये। अब लुइस 16 को क्या हुआ कि उनको फांसी कर दिया गया, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम लोग के लीगल राइट्स का फिर से जो हम लोग का बात हुआ था, हम लोगों की डील हुई थी, जो हमारी बात हुई थी, हमारी डील हुई थी, उसको ये बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री के गवर्नमेंट को बिट्रे कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर 93 में जनवरी 21 93 में ये पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड में ही वाज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मैरी एंटोनेट के बाद भी सेम ही हुआ कि उनको भी उनके हस्बैंड के बाद उन लोग को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। नाउ दिस वाज द एंड ऑफ लुइस 16, ठीक है। 73 में सबके सामने पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड में ही वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। नाउ वी हैव द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर इज इटसेल्फ सीम्स टू बी टेरर, राइट? So the reign of terror was also not more than 1 year, almost 1.5 years, yeah, it was reign of terror, ठीक है। Now reign of terror क्या थे? रॉबस्पियर जो थे, he actually gained very severe control and he actually punished all of the people who used to, do not listen to him or maybe whenever he feel like he or she is not listening to me, not following my rules, तो उसको क्या करते थे? उसको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। अब रॉबस्पियर को ऐसा हो गया ना, कहते हैं ना कि ज्यादा पार हो जाता है तो घमंड आ जाता है, या फिर दिमाग काम नहीं करता है, या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो जो भी हो गई थी, पर रॉबस्पियर की बुद्धि सच में भ्रष्ट हो चुकी थी। ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर, ही एक्चुअली helped a lot in the people of for the people of France to gain the voting rights and different things, but अब क्या हुआ, ये खुद ही मोनार्क बनना चाहते थे, रिपब्लिक करवा के खुद मोनार्क बनना चाहते थे और इसलिए इनको भी एग्जीक्यूट किया गया था। नाउ रॉबस्पियर के लिए सब एनिमी बन जाते थे, जो भी इनकी बात नहीं माने या फिर इनको लगे कि इनका रूल फॉलो नहीं किया, दे ऑल वर द एनिमीज ऑफ रॉबस्पियर, ठीक है। सो वेदर it was ex-nobles, clergy, ये तो थे ही, even the members of his own party were arrested and imprisoned। क्यों भाई? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि सर I think this is not politically correct or you should not do this, instead of doing this we could have certain another measures for the beneficial of the people or the citizens, but he actually didn't listen to anyone। Whoever spoke against him was being executed and guillotined। अब इन्होंने एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन छोड़ दिया, गुलेटिन निकाला। गुलेटिन क्या था? डॉक्टर गुलेटिन ने गुलेटिन को इन्वेंट किया था, इसीलिए उसका नाम गुलेटिन रखा गया, ठीक है। whoever was guilty he was guillotined। दो पोल होते हैं, बीच में ब्लेड होता है, सीधे सर कट जाता है, ठीक है। दो पोल होता है, ब्लेड होता है, ऐसे खच खत्म। That was guillotine, तो डॉक्टर गुलेटिन ने गुलेटिन निकाला। So whoever was found guilty, he was guillotined। Now Robespierre's government actually issued different laws, and he was actually raising the wages and prices। So वो बहुत सारा क्या कहते हैं, वेज और प्राइस सही कर रहे थे, धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था। फ्लावर जो है बहुत एक्सपेंसिव, फ्लावर जो बहुत लोग खाते थे, उसको बैन कर दिया कि नहीं भाई अब तुम्हें नहीं खाना है, सब लोग सेम ब्रेड खाएंगे।
मीट और ब्रेड सब राशन में जाएगा, सब राशन होगा। सारे ऑल सिटीजन्स वर एक्वायर्ड ये पा दे गैलीथ, पा दे एगलीथ, ठीक है। ये भी फ्रेंच वर्ड है, पेन दी लाइट मत बोलना, इट इज पा देगलीट, उसको फ्रेंच में बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्वालिटी ब्रेड, पा इज योर बेसिकली ब्रेड, ठीक है, और देगलीट मतलब देगलाइट और डेगलीट व्हाटएवर यू वांट टू से इक्वालिटी, ठीक है। तो सारे सिटीजन्स को ये फॉलो करना था। अब एक ट्रेडिशन था मॉन्जियर या फिर मैडम बोलने का, अब दे नो मोर यूज टू से मॉन्जियर मॉन्जियर या फिर मैडम, इट इज ओनली सिटोयन या सिटियोने, ठीक है। तो सिटीजन्स होता था। सारे चर्च बंद हो गया। चर्च क्या था? चर्च जो था वो हमसे टैक्सेस लेते थे ना पेजेंट से, तो वो सारे बंद हो गया। नाउ रॉबस्पियर्स पॉलिसी वाज वेरी रिलेंटलेस, डिमांडिंग सपोर्टर्स एक्चुअली डिमांडेड कि वी वांट मॉडिफिकेशन, ठीक है। You are here not to rule us like the previous one. You are here to, you know, give republic to the people. Now since he was the one who actually formed the Jacobin club, and it was the reason कि उन लोगों ने वो जीता वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा, तो रिपब्लिक के बाद ऑफ कोर्स यही लीडर बने। बट ये लीडर कम मोनार्क ज्यादा बनने लगे, तो बहुत रिलेंटलेस और रूथलेस पॉलिसी थी, बहुत ज्यादा वायलेंस था, हर किसी को गुलिटिन कर देना, इट वाज एक्चुअली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इन लोग इसको ही कोर्ट से कन्विक्ट कर दिया गया, और 1794 में रॉबस्पियर हिमसेल्फ वाज गुलिटिन, ठीक है, खत्म। भाई तूने गुलिटिन को यूज करा, लो योर गिफ्ट टू यू ओनली, taste of your own medicine finally. So that was end of Robespierre. Now a directory rules France. अब क्या हुआ कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो गिरी तो मिडिल क्लास को पावर मिली। जैकोबिन थी नहीं, कोई मोनार्क थी नहीं, कुछ नहीं थी। अब when nobody was there, then the middle class thought that we have the power because we have the wealth. So middle class got power. Now the new constitution was there, and again it was denied vote to the non-propertied section, कि भाई अब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको नहीं मिलेगा रूल करने के लिए। फिर दो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट की गई, और फिर एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स में, और वो दोनों सोचे कि इस अब डायरेक्टरी के थ्रू रूल चलेगा। पर हमेशा डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्लैश होते रहते थे, और बहुत ज्यादा डायरेक्टरी में इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है। तो अब आए डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी भी वर्क नहीं करी, तब आना पड़ा नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। Now we have Unit 4, so Unit 9 is complete. Sorry, Unit 3 is completed, and Class 9 people study. ठीक है, it is high time to study, and whosoever is watching it, ठीक है. So I'll make sure to provide you with every kind of notes and everything, because I know how you all are busy in different things. So yeah, you have to study. So don't you take any kind of tension. I'm gonna provide you with the lecture as well as the notes. It's just that you consistently watch it. Okay, I'll provide it. So I'll definitely add the notes, the 2-page notes, to the description box. Do check it, and if you like the video, subscribe to my channel. Bye bye.